Jai Hind, Vande Mataram friends. In this part, we will learn sales book with column and expenses. These two pattern we will learn in this lecture. And as last lecture, I gave you one solved sum from the exercise in your PDF. Same way this time also we are doing the sums here from illustration, and same kind of solved sum I will send you through PDF. So twice will be practiced and perfection definitely you will get in your work. Okay, so here let's start the illustration number 5th. Sum is saying that from the following transaction of Sri Bhavana Telecom, prepare a columnar sales book. Bhavana Telecom sells mobile, cordless and simple telephone. Transaction is year 2015 July. Okay, here I have prepared your format as usual. As you prepare the purchase book, same way you have to prepare the sales book, columnar sales book. Okay, difference is only that there you had written purchase book and here you have to write the sales book. Same thing, date will come here, there. Name of supplier was there because someone was giving goods to you. Now you are selling the goods, so you have to write the name of customer. So heading will be changed here, name of customer. Similarly, it was inward invoice number because goods was coming inside from the outside. Now goods is going from your business to another place. That's why outward invoice number. Laser for you is as it is. Amount, whatever columns, whatever selling you are doing, according to that you make the column. Here we are selling the mobile, cordless and simple phone, so we make that accordingly, and last one is the total. Okay, so this is your format. You have to prepare in sales book, columnar sales book. Now let's do the sum. First, sold to Bharat 5 mobiles, rupees 9,000 per piece. Okay, 5 cordless at 4,000 per piece and 10 simple telephones at rupees 2,000 per piece. Invoice number is 101 and credit period is 2 months. First thing is that there is no provision of any kind of discount, so there is no need to find the discount amount here. Okay, simply what you have to do, 2015 July 1st, to whom you are supplying, that person is Sri Bharat or Bharat. So you write here Sri Bharat account. Invoice number is 101, so write here 101. Laser for you is not mentioned, just make it dash. Now you see mobile. Okay, 5 mobile 9,000, so you 9,000 multiply by 5, so 9 5 are 45. So total cost is 45,000. So write here 45,000. Okay. Next is your cordless 4,000. The 5 fours are 20. So here it is
20,000. Next one is your 10 simple telephone. So 20 multiplied by 10, it is again 20,000. Now you see 20 plus 20, 40 plus 40, 80 plus 5, 85. So here it will come 85,000. And like this way, our first transaction become over here. Is it clear? Now, next. So in next, again, 7th date, sold 3 mobile 8,000 per piece and 2 simple phone rupees 18,000 per piece. First thing, to whom you sold, that is not mentioned. If it is not mentioned, then what kind of transaction it is? Yes, it is your cash transaction, and cash transaction is not the subject of sales book. So this one we will not note here. Okay, this one we will note in cash book or the journal proper. Is it clear? See the 15th, date 15th. Sold to Deepak 4 mobile at 7,500 per piece and 10 simple phone 1,700 per piece at 10% trade discount. Credit period 3 months, invoice number is 105. So this one we can note here because trade discount is there, credit period is there, and no other such kind of indication as mentioned which prove that it is a cash transaction. Okay, so of course by nature it is credit transaction, so we will note this one here. हम इसको यहाँ पर लिखेंगे. अब यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह सब निकालना पड़ेगा. So first, date is your 15. Write here 15. Okay. After that, to whom we have sold? Deepak. Shri Deepak account. Invoice number is mentioned here 105, so note here 105. Okay, what we sold? 4 mobile at 7,500. 7,500 4 mobile. 30,000 का 10%, 3,000. Deduct it from this, you will get 27,000. So in mobile, you note 27,000. I think so you are able to see in this side. यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वर्किंग नोट. ओके, ठीक है ना. नेक्स्ट, अगेन व्हाट इट इज सेइंग फर्दर. ये आगे आप लोगों को बोल रहा है 10 simple phone 1,700 means 17,000, because 1,700 multiplied by 10 equal to 17,000. If you find 10%, 1700 00 10 7 3 6 1 5 and 1 15,300. Okay, and it is your simple phone
cordless is not there, so we will make it dash there, and here we will write 15,300. If you will add this both, you will get 42,300. एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखो 003 7 plus 5 12 carry on 1 12 on 3 and 1 4 42,300. Is it clear? Next 20 तारीख, a machine sold to Mahindra at 12,000 and credit period 1 month. It is not related with this dear. Reason is that this is not goods, this is asset, so this is the subject of journal proper, so this entry we will not write here. Next, sold to Arvind 8 mobile at rupees 9,000 each, 10 cordless phone at 1,900 each, 10% trade discount. अरविंद पेड 50% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट आया मतलब हमको इसमें लिख देना है। इनवॉइस नंबर इज 115। चलिए वर्किंग नोट के लिए जगह कर लेते हैं पहले तो थोड़ा बहुत भैया। चलिए डेट कौन सी है? 23। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टी? Arvind, Sri Arvind account. Sri Arvind account. What is invoice number? 115. Okay. Good amount is there, 9,000, 8 mobile at 9,000 each, 9 8s are 72, तो 72,000 तो यही होगा भैया। अब ओरली अगर आपको करना हो तो 72,000 का 10% 7,200 होता है भाई, डिडक्ट करो। 64800। Mobile, and then 8 mobile, and then 10 cordless phone 19,000 cordless, this one मतलब ये सिंपल वाला नहीं दिया होगा। ओके 1900 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे 19,000, और 19,000 का 10% निकालोगे तो 1900 आएगा। $17,100। ओके अब इन दोनों को ऐड करो जरा। $81,900। Next 26, Shri Ghanshyam placed an order for supply 5 mobile 8,500 and simple phone, oh sorry हाँ बराबर ये हाँ, and simple phone 2,100। अब ऑर्डर किया हुआ है तो भैया NFT नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट, गुड्स सेंट टू श्री घनश्याम एज पर हिज इनवॉइस नंबर।
अब घनश्याम जी को जो है उनके इनवॉइस के हिसाब से गुड्स भेज दिया, बराबर है। तो डिस्काउंट वगैरह की बात थी तो 26 वाला नहीं आएगा, लेकिन 28 वाला तो डेफिनेटली आएगा भाई, क्योंकि उनको अब यहाँ पे गुड्स भेज दिया। पहले में ऑर्डर मिला था, तो ऑर्डर तो एनएफटी है, बराबर है, लेकिन जब हमने सेंड किया तो हमारा ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब 8500 मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 5 25 कैरी ऑन 2 5 8 40 प्लस 2 42, यानी 42,500। सिमिलरली 2100 मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं, सिंपल फॉर्मूला, तो दैट इज योर 21,000। अब इन दोनों को ऐड करोगे आप लोग तो कितना होगा, देखो जरा यहाँ पे 42,500 प्लस 21,000, 0 0 5 3 63,500। और यहाँ पे कौन है, श्री घनश्याम अकाउंट। घनश्याम अकाउंट, श्री घनश्याम। क्लियर। 31st sold to Milan 2 mobile 700 each and 3 cordless 3,500 each by cash. Cash लिखा हुआ तो cash transaction is not the subject of this, so our entry is over here. Let's tally, इन सबकी टैली करते हैं। अगर तो इसको ऐड करोगे, if you will add this, you will get 179300. Okay, next one is 37,100. Sorry, 37,000. This is 17,100. Oh, sorry, I have mistake. Actually, 17,100 है ये, my mistake, 17,100, so it is 37,100। देखो बच्चों, अटेंटिवनेस रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तो, बराबर है। नेक्स्ट इज योर 56,300। And if you will make it total, 0 0 5 plus 3 8 and 9 17, carry on 1, बराबर है। तो 5 and 1 कितना हो गया, 6 plus 2 8 and 1 9 10 11 12 2, carry on 1 8 8 16 plus 1 20 26 and 27, so 272700, this is your answer। देख लो जरा एक बार इसको, फिर मैं आप लोगों को इसके बाद में जो है एक और सम इसमें करवा रहा हूँ, एंड दैट इज योर कॉलमनर विथ एक्सपेंस। ये कॉलमनर था, ओनली गुड्स का था, गुड्स। नाउ वी आर डूइंग फॉर एक्सपेंस। चलिए, ओके चिल्ड्रन, सी नाउ नेक्स्ट सम। नाउ दिस इज योर as per expense columnar. Okay, first one was as per goods। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों ने परचेज बुक कर लिया है, यू नो हाउ टू कैलकुलेट द जीएसटी, बराबर है, सेम पैटर्न है, कोई फर्क नहीं है। ओके, सेम टू सेम ही है, कॉपी टू कॉपी, ओनली इतना है कि वहाँ पे परचेज बुक कर रहे थे, यहाँ पे हमको सेल्स बुक करना है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है। जस्ट सी नाउ सम नंबर illustration 6 page number 137, sorry 137 पेज पे है ये, and it is saying that from the following transaction prepare the sales book inclusive of expense in the books of Sardar store of Surat। तो sales book of Sardar store,
हम लोगों ने लिख दिया। सरदार स्टोर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ जीएसटी, रेलवे, फ्रेट एंड लेबर। जीएसटी, रेलवे, फ्रेट एंड लेबर। प्रिपेयर सेल्स बुक ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। क्लियर कर दिया है, जीएसटी 12% चार्ज होगा, इम्पोज होगा। जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, सो वी हैव टू add applicable amount of GST and prepare the sales book. First one, sold goods rupees 30,000 at 10% trade discount to Pankaj. Railway freight 1,000, wage 300 and invoice number is 123. So first of all we will write here, this is the year 2015. Okay, 2015 June 1st. June 1st. Okay. June 1st. Goods is rupees your 3,000, 10% निकालोगे तो 3,000 का गुड्स, सॉरी 30,000 का गुड्स है, 10% डिडक्ट करोगे, 30,000 का 10% यानी 3,000 होगा, माइनस करोगे तो 27,000 आएगा। ओके, 27,000 रुपीज आपके गुड्स का आ रहा है। सो यू राइट हियर, किसको सोल्ड किया है ये हम लोगों ने? टू पंकज। श्री पंकज, अकाउंट, इनवॉइस नंबर दिया हुआ 123, गुड्स की वैल्यू हुई 27,000। उसने मेंशन किया है यहां पर रेलवे फ्रेट 1,000, लेबर चार्ज is your 300। अब इन सबको ऐड करके पहले तो जीएसटी निकालेंगे भाई। देखो कितना हो गया, ये 1,000 ये हो गया, एंड दिस इज योर 300, ऐड इट 28,300, इसका 12% आप निकालते हो। देखो यहाँ पे 283 मल्टीप्लाई बाई 12, मालूम पड़ा ना, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल किया तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, कैरी ऑन 1, 382, अब ये बेचा कहाँ पे है भाई, पहले तो वही देखो, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। गुड सोल्ड 30,000, ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट टू पंकज, रेलवे फ्रेट 1,000, वेज इनवॉइस नंबर, कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है कि भाई स्टेट टू स्टेट गया, सेंटर टू स्टेट गया। तो ऐसा कुछ आता है बच्चों तो हम लोग जो है डायरेक्टली इसको हम लोग दो इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ पर बराबर है। अब इसमें जो है इसको जो है ऐड करो मेरा ये 27,000, 1,000, 3,000 and 3,396. Okay, now divided by इसको 2 करो, 2 1 जा 2 हुआ, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18
एंड 2 8 1698। तो ये आपका जीएसटी हो गया 1698 और इनको ऐड करोगे अभी आप दोनों को। ओके, मतलब 28,300 प्लस 1698 2998। कुछ भूल तो नहीं हो रही है? जस्ट 28,300 इसमें हम लोगों ने ऐड कर, सॉरी ये ऐड करना है, दोनों अमाउंट ऐड होंगे ना, सॉरी 3396 इट विल बी एडेड, सॉरी 31,696 31,696 we have to add the full amount. Okay, ये पूरा अमाउंट ऐड करना है। Is it clear? So this is the first entry. Now let's talk about further. आगे बात करते हैं। I hope you understood this. आप लोगों को समझ में आया होगा ये। 10th को देखते हैं अब जरा। ये बोल रहा है गुड सोल्ड ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन कैश। ट्रेड डिस्काउंट के साथ में कैश वर्ड दिया हुआ है तो डेफिनेटली कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये एंट्री यहाँ पे आएगी, लेबर चार्ज नहीं होगा, कोई अपने को इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नो ट्रांजेक्शन इन दिस बुक। 14 को देखते हैं हम। गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो अभी तक 10% आ रहा था, अब कितना आ गया? 5% आ गया, बराबर है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है मेंटली वो भी सिखा रहा हूँ। ऑन क्रेडिट 3 मंथ टू जयेश भाई ऑफ जयपुर में दिया हुआ है। ऑन द बिहाफ ऑफ जयेश भाई पेड लेबर 250 एंड रेलवे फ्रेट 400। इनवॉइस नंबर 130 सेंड बाय एडिंग लेबर एंड रेलवे फ्रेट। ओके, तो 20,000 का अगर आप 10% निकालते हो तो देखो आपने बराबर दिमाग में लगाना है, तो दैट इज 2,000। तो आधा कितना हो गया उसका? 1,000। ठीक है, तो 20,000 में से आपको कितना माइनस करना है? 1,000 माइनस करना है। सो इट इज योर 19,000। ओके, हु इज दिस? जयेश भाई। राइट द डेट 14 श्री जयेश भाई account invoice number is 130. Okay, here 19,000. Okay, उसके बाद में देखो रेलवे फ्रेट 400 रुपीज था। ओके, एंड लेबर चार्ज 250 था, यानी 19,000 में 650 आपको और ऐड करना है। ओके, 19,650 और इसका आपको कितना निकालना है अभी? जीएसटी। ये 10 और ये 10 इधर से कैंसिल कर देंगे। अब डायरेक्टली तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर, इधर अगर बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है तो यू जस्ट पुट 1 डेसिमल हियर। तो ये आप ऐसे कर दो 196.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 12। पिक्चर ही खत्म हो जाएगा भाई पूरा का पूरा। और आपके पास तो कैलसी होगा वैसे भी, तो यू कैन डू लाइक दैट वे। आप डायरेक्टली कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय 100 कर दो, दैट इज आल्सो द वे। मेरे पास कैलसी नहीं है भाई, मैं तो कैलसी नहीं जानता आदमी हूँ, बराबर है। तो मैं तो हैंड एंड मैन, बराबर है, हाथ और माइंड, बराबर है, इन दोनों से काम करता हूँ भाई मैं। 2 5 10 0 कैरी ऑन 1 2 6 12 and 130 कैरी ऑन 1 2 9 18 and 119 कैरी ऑन 1 2 1 2 3 1 5 5 6 9 1
एक नंबर के बाद डेसिमल का चला गया तो 2358। अब 2358 अब जो है तुम लोगों का यहाँ पे देखो तो ये जो है दूसरे स्टेट का है तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आएगा, राइट हियर 2358। अब ये जो 19,650 था इसमें जो है कहते हैं 2358 प्लस करो तो 22008 इतना आंसर आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट इज योर 15th। और 15th पे देखो एन ओल्ड मशीन सोल्ड टू किशन ₹15,000 फॉर द लेबर पेड 320। अब मशीन है, गुड्स तो है नहीं, सो दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिलेटेड टू सेल्स बुक, सो वी विल नॉट राइट हियर दिस वन, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं। नाउ नेक्स्ट इज योर 25th। Goods sold of ₹10,000 at 5% trade discount on credit। बराबर है, 5% ट्रेड डिस्काउंट में जो है क्रेडिट में जो है क्या कहते हैं गुड्स को सोल्ड किया है। 5% ट्रेड डिस्काउंट अगेन कीप इन योर माइंड ऑन 3 month to वैभवी रेलवे फ्रेट 800 वैभवी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द टोटल अमाउंट इनवॉइस नंबर 135। हमको उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक बार ट्रेड डिस्काउंट आ गया, अब हाफ पे किया हो चाहे कुछ भी किया हो, बराबर है, वी हैव टू राइट अकॉर्डिंगली, हमको वैसे ही करना है, हमको कुछ हाफ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। So we will write 25th Messrs Vaibhavi account। Messrs Vaibhavi account 135। Trade discount is 5%, यानी कितना हो गया 500 रुपीज हो गया भाई, बराबर है। 10,000 का 10% 1,000 हो गया तो 5 कितना हो गया 500, यानी कि 9,500। अब हम लोग जब इसको ऐड करते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है अभी आपका यहाँ पे 800 रेलवे फ्रेट लेबर चार्ज कुछ पे किया हुआ नहीं है तो वहां पे हम लोग डैश कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, $10,300। अब इसका 12% हम लोग जीएसटी इम्पोज करेंगे, वन 2 3 6। तो अब इसका हाफ करेंगे तो 2 6 12। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो ये भी जो है इसमें ही चला जाएगा, इन दोनों में चला जाएगा। 618 एंड 618 और अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो इट इज 11,536। ओके एंड नाउ लास्ट 30th Goods sold ₹40,000 at 10% trade discount on credit of 1 month to Gaurang railway freight 1,500 added in invoice number 140 and send it। तो गौरांग 40,000 का 10% अब देखो यहाँ पे निकालोगे तो 40,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो 4,000 होगा, बराबर है। और 40,000 में से 4,000 लेस करोगे तो 36,000 आएगा। नाउ आई एम नॉट शोइंग देयर, डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर। Gaurang account invoice number is 140, okay, and 36,000। रेलवे फ्रेट उसने पे किया है बच्चों 1,500, लेबर चार्ज कुछ भी नहीं है।
बराबर। अब हम लोग आगे इसका जीएसटी इंपोज करते हैं, कितना होता है देखो जरा। सबसे पहले तो 36,000, उसमें 1500 ऐड करेंगे, थ्री 7500। इसका 12% अगर आप निकालते हो, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 375 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 5 जा 10, 10 1 1, 14 1 15, 6 7 5 7 3 0 0 5 and 4 4 5 double 0 divided by 2 2250। दूसरे कोई स्टेट को मेंशन नहीं किया हुआ, दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड लाइक दिस वे, एंड दिस इज एंटायर अमाउंट इज योर 42,000। ओके, अब अगर आप इन सबको ऐड करते हो यहाँ पर, तो इन सबको ऐड करोगे 91,500 आएगा। $3,700 आएगा, 550 आएगा। इन सबको ऐड करोगे तो 4566, ये भी सेम ही अमाउंट है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 4566, यहाँ तो कुछ ऐड ही नहीं करना, तो ऐसे आएगा। ओके, अब इन सबको ऐड करते हो यहाँ पर, तो देखो जरा, Three 1 6 9 6 2 2 0 0 8 1 1 5 3 6 9 3 12 13 14 4 1 3 7 5 12 का 2 2 yes 107,240 is its total addition. Is it clear? And like this way we completed this. Now finally one sum comprehensively, इसमें आपका कॉलमनर टाइप का भी हो, जिसमें जीएसटी भी आया है, और उसके साथ में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो सबका सब आया है। एक ऐसा एक कॉमन सम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर कैश बुक। ओके, तो प्रोबेबली अगले इसमें जो है लेक्चर में इट विल बी ओवर, ठीक है। बट यू डू दिस, एंड डेफिनेटली आई विल सेंड यू PDF this kind of sum, so you can do more practice. Okay, bye, see you all of you, take care. Papa.